تو جتنے لوگ بے نمازی ہو کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اس لیے نماز کی توفیق کو تجھ سے چھین لیا ہے۔ اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے اور نماز کی توفیق کو مانگیے اور نماز پڑھا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بہت امیر آدمی تھا، دولت والا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے تجھے بہت دولت دی ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، تو ایسا کر، اللہ کی عبادت کر، نماز پر سجدہ کر، رکوع کر، نماز میں کھڑا ہو۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا، اے موسیٰ، میں اللہ کی عبادت کیا کروں، میں کیا نماز پڑھوں، کیا روزہ رکھوں، بغیر کیے تو مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اتنی دولت ملی ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری دولت میں برکت ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں، میرے گھر میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو لے کر کوہ طور پر پھر گئے، عرض کہ مولا، تیرا ایک بندہ ہے، میری ایک امتی ہے، بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، میں نے اس سے نماز پڑھنے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے دولت میں برکت ہے، پھر بھی میرے مال و دولت میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، مسلمان کا گھر جہاں جہاں ہے، مسلمان کا محلہ بستی جہاں جہاں ہے، ہر بستی میں مسجد ہوتی ہے، ہر محلے میں مسجد ہے، ہر بستی میں مسجد ہے، لیکن ان مسجدوں میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ اگر وہاں 500 کی آبادی ہے مسلمان کی تو مشکل سے 25 آدمی نمازی ملے گا آپ کو۔ اور قوم سوچتی ہے کہ ہمارے پاس برکت بہت ہے، برکت بہت ہے، تو ابھی سنیے گا کہ برکت کیسے ہے۔ یہ نماز اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ نماز چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ دن کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کو توفیق نہیں ملی۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ سے کہ اے مالک و مولا، آخری سانس تک تو مجھے نمازی بنا کے رکھنا، ایمان کی حالت میں رکھنا، پکا سچا نمازی بنا کے رکھنا اور نماز کی توفیق دینا۔ اور آگے سنیے، مسجد ہوتی ہے ہر محلے میں، نمازی کم ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، اور جس کا گھر دور میں رہتا ہے وہ دور سے چل کے آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور جس کا گھر بغل میں رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہ اللہ نے اسے توفیق نہیں دیا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو جتنے لوگ بے نمازی ہو کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اس لیے نماز کی توفیق کو تجھ سے چھین لیا ہے۔ اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے اور نماز کی توفیق کو مانگیے اور نماز پڑھا کیجئے۔
सोचते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बरकत तीर मारे हैं। नहीं, बरोज़े माशर जब पहुंचेंगे ना तो पहला सवाल जब होगा, अल्लाह पूछेगा बंदा नमाज कहाँ है दिखाओ, वही होश और अकल ठिकाने में आएगा। और ये सवाल सिर्फ हमसे नहीं होगा, आपसे भी होगा। और सिर्फ आपसे नहीं, आपके घर के बेटा और बेटी से भी होगा, आपके घर के औरत मर्द सबसे होगा कि बताओ नमाज कहाँ है, नमाज कितनी पढ़ के आए हो। हर आदमी से पूछा जाएगा। जो नमाज पढ़ते हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप तो पढ़ लेते हैं, क्या आपके घर के लोग पढ़ते हैं नमाज? अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़ते हैं तो क्या आपके अंदर ताकत है कि बरोज़े माशर जब अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा, तो क्या तुम अपने बेटे को वहां बचा सकते हो, अपनी बेटी को बचा सकते हो, अपने घर के लोगों को बचा सकते हो? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब अल्लाह की अदालत होगी, बंदा खड़ा होगा अल्लाह की बारगाह में, अगर दायां पैर उसका आगे है, बायां पैर उसका पीछे है, तो बंदे के अंदर इतनी भी हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि वह अल्लाह के सामने दोनों पैर को इकट्ठा कर सके, बराबर कर सके। यह है अल्लाह की अदालत। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर बंदा सीधा देख रहा है तो नजर मुड़ के देखने की भी हिम्मत नहीं होगी वहां पर। और आज आप नमाज पढ़ते हैं, अब मुझे तो लगता है कि अक्सर नमाजियों के घर में सब के सब बेनमाजी लोग हैं, तो आप कामयाब नहीं हैं। अक्सर नमाजियों के घर में घर के लोग बेनमाजी हैं, उस घर में जितने बच्चे हैं बूढ़े हैं सब के सब बेनमाजी रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर अपने घर वालों को जन्नत में लेके जाना है तो फिर उस पर सख्ती करो और उसे नमाज पढ़ने की सख्ती करो और उसको नमाज में खड़ा करो। इसीलिए कि मरना सबको है, कयामत के दिन सबको खड़ा होना है, हिसाब किताब सबसे होने वाला है, कोई वहां बच नहीं पाएगा। बचेगा वही जो फराइज का अंजाम दे के जाएगा, नमाज पूरी पढ़ के जाएगा। बहरहाल मैं बता रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ फिर भी मेरी दौलत में बरकत है, ये कैसे? तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, उसकी दौलत में बरकत नहीं है बल्कि कसरत है, कसरत। और मैंने उसको ज्यादा दौलत इसलिए दे के रखा है कि कल कयामत के दिन वह आएगा, उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ मैं हिसाब लूंगा। अब जितने बेनमाजी हो, अब जरा सोचो कि आपके पास जो दौलत है इसका बड़ी सख्ती के साथ हिसाब होने वाला है। अगर दौलत है नमाज नहीं तो वहां फंसने वाले हैं, और नमाज है, दौलत है तो समझिए अल्लाह राजी है मेरे कारोबार में, मेरी दौलत में, मेरे घर में, मेरे खानदान में अल्लाह ताला बरकत को दे के रखा है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसके हर काम में अल्लाह ताला बरकत देता है, और जिससे नाराज होता है उसमें कसरत देता है और मालो दौलत को बढ़ा देता है। और सोचता है वो इंसान कि बहुत मालो दौलत कमा लिया, नहीं, अल्लाह कहता है पलट के आओगे ना बड़ी सख्ती के साथ मैं तुझसे हिसाब लूंगा। इसलिए उन लोगों को अल्लाह ताला छूट दे करके रखा है। और नमाज वही इंसान पढ़ता है जो इंसान से अल्लाह राजी होता है। बहुत सारे लोग इसी कौम में मिलेंगे आपको
जो 40 साल उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई, 25 साल का नौजवान है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने आपको किस लिए बनाया है? अल्लाह ताला ने आपको किस लिए बनाया है? कभी गौर कीजिए इस बात पर। और ये भी सुन लीजिए, हद्दे बुलूगियत से नमाज फर्ज होती है और मौत की आखिरी सांस तक नमाज फर्ज है। जब तक चल सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, खड़े होके नमाज पढ़िए। तकलीफ में है, बैठ के नमाज पढ़िए। उससे ज्यादा तकलीफ हो गई तो लेट करके नमाज पढ़िए। और अगर परेशानी बढ़ गई, इशारे से नमाज पढ़िए, नमाज माफ नहीं है। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, मेरा बचपन का वो आलम था। वो मुफ्ती साहब है, मुफ्ती गुलाम यासीन नाम उनका है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। वो मदरसे का नाज़िम आला है, वो मदरसे का नाज़िम आला है। मेरा बचपन था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। एक मर्तबा उनका एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल चलाते थे वो, आज से लगभग 15 साल पहले या 17-18 साल पहले। उस वक्त के दौर में भी वो मोटरसाइकिल चलाते थे, बाइक चलाते थे। अचानक किसी हादसे में वो एक्सीडेंट कर गए। अब उसके अंदर चलने की ताकत नहीं थी, बोलने की सलाहियत नहीं थी। वो बिस्तर पे पड़ गए, डॉक्टरों की दवाई हो रही है। इतने में जोहर का वक्त आया तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि कुछ देर के लिए मुझे छोड़ दो। अब वो नमाज पढ़ते हैं तो कैसे नमाज पढ़ते हैं? इशारे से नमाज पढ़ते हैं। और उनका एक जुमला मैंने सुना था, वो जुमला आज से लगभग 17 साल पहले सुना था, वो आज भी मुझे याद है। वो जुमला ये था कि नमाज कभी भी किसी भी सूरत पर माफ नहीं है। जिंदगी है, दिमाग काम कर रहा है, अकल काम कर रही है, सांस चल रही है, नमाज फर्ज है, माफ नहीं है। जिस हाल में हो उसी हाल में नमाज पढ़ो। तो मैंने यही देखा कि वो बेड पर लेट करके इशारे से नमाज पढ़ रहे थे। तब मैंने सोचा कि या अल्लाह, ये नमाज कितनी अफजल इबादत है और कितनी कीमती है ये कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मौत सामने है, लेकिन नमाज कज़ा नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्तों, आप भी सच्चे दिल से नमाजी बनो, फिर ऐसी मोहब्बत नमाज से होगी कि बिस्तर पर भी पड़े रहेंगे तो नमाज छोड़ने का मन नहीं करेगा। जिस हाल में होंगे उसी हाल में नमाज अदा होगी। इसलिए आप भी पढ़िए, अपने घर वालों से भी पढ़वाइए, अपने खानदान के लोगों से भी पढ़वाइए। नमाज हर हाल में फर्ज है। अल्लाह कहता है कि मैं जिससे राजी होता हूँ उसको नमाज की तौफीक दे देता हूँ, और जिससे नाराज होता हूँ उसको नमाज की तौफीक नहीं देता हूँ। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो खुद फैसला करे अपने आप पर कि अल्लाह ताला मुझसे राजी है कि नाराज है, अल्लाह खुश है कि नाराज है। अल्लाह व रसूल को राजी करने का यही तरीका है कि आप कसरत से नमाज पढ़िए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, नवाफिल पढ़िए और सजदे में जाइए,